नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आज हम फिर से एक हीमोहिम पे टेस्टिमोनी देखने वाले हैं और वो है ब्लीडिंग अल्सर की। ब्लीडिंग अल्सर प्लस हाई बीपी। हाई बीपी की समस्या नॉर्मल है, आप भी जानते हैं। हमारे देश के अंदर में लगभग हर घर के अंदर में बीपी की समस्या है ही। तो हाई बीपी एक नॉर्मल समस्या है और अल्सर भी नॉर्मली लोगों को होता है। अब इस हीमोहिम की जो टेस्टोमनी है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाई बीपी और अल्सर पे हीमोहिम प्लस प्रोबायोटिक, तो वो लेडी प्रोबायोटिक पे लेती थी, तो कैसे काम किया। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखिए पहले। I was trying the Hemohim and some of the body wash and all this, right? So when I tried the Hemohim, I was using it, but I didn't feel anything change. Okay, so but I keep on taking it, and in April last year, I was hospitalized because I had a giant ulcer and I had bleeding. My hemoglobin dropped to 55 and keep on dropping because it's bleeding, keep on bleeding. And then the doctor was ready for me to be operated. Before that, they put me in ICU. And for sure, many people pray for me, right? And that Saturday, you remember that Easter weekend in April, that I was in the hospital. I was in the ICU. I thought I was gonna die because my hemoglobin dropped so much, right? So finally, the surgeon came to me in ICU. If your bleeding didn't stop, I'm ready to operate you. So they found a giant ulcer, okay? Because I was taking, for 3 months, I was taking baby aspirin. And when I was taking baby aspirin, sometimes empty stomach, I was taking it, I didn't know. So December 2018, I started the baby aspirin. And then April, I was hospitalized because I had a bleeding ulcer. So after that, I was getting better. The hemoglobin went up better and better. So they discharged me on the 27th of April. They discharged me. And my hemoglobin was, I think was 100 or something. So went up. And I was feeling much better. And when I got home, I was taking again the Hemohim, probiotic, and all this, right? So thank God, in July, I had the ultrasound again, and the ulcer was healed. So I think the probiotic helped me, okay? And also with God helped me. Okay, so that's the story of the Hemohim. And one more thing I have to tell you. After my hospitalization, that in April, I was, the doctor stopped all my medication except the diabetic, okay? So for 1 year, my blood pressure medication was on hold. For 1 year, I don't have to take the blood pressure pill. I didn't know. I think that was the Hemohim. Okay, so after this year, in May, I talked to the doctor again, and she mentioned that no more blood pressure pill. So I was taking blood pressure medication for about 10 years.
and now more than a year, no more. I think the hemohim It's an also, amazing okay, story. which is good. So I like the product of the Atomy, and it helps me. I just realized that, wow, more than a year I don't have to take blood pressure pills, That's and I check my blood pressure is fine, everything is okay. Just Okay. knew in May this year that the doctor say, okay, no more on hold, you don't need blood pressure pill. See, that's oh, must be hemohim. Good. तो आपने वीडियो देखा होगा, इनका नाम है रूथ रोडिग्रो। ये इनकी टेस्टोमनी है। इन्होंने हीमोहिम और प्रोबायोटिक दोनों लेना चालू किया, लेकिन उनको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा था। उन्होंने नॉर्मल क्यों, उनकी कोई तकलीफें नहीं थी। उस पीरियड में किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आप ये लेना चालू करो, और उन्होंने दोनों एज पर एज फैक्टर के हिसाब से दोनों चीजें लेना चालू किया, लेकिन उनको कुछ बदलाव उनमें नहीं दिखा। और लेकिन उसके बाद भी उनके एक विश्वास था और उन्होंने उसको चालू रखा। अप्रैल 2019-2020 में मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि उनको स्टमक, जो अल्सर बोलते हैं अपन, बहुत बड़ा अल्सर हो गया था स्टमक के अंदर में, और उसमें से ब्लीडिंग, खून भी बह रहा था, और उसके कारण इनका हीमोग्लोबिन भी काफी कम हो गया था, अप्रोक्स 55 के आसपास। 55 यानी यहाँ 55 यानी पर लीटर 55 का होता है, और हम जो रिपोर्ट में देखते हैं 5.5 ग्राम आता है पर डेसीलीटर आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 55 का आ गया, हम 5.5 कहते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूअसली हीमोग्लोबिन इनका कम होते जा रहा था, क्योंकि इनको जो अल्सर हो गया था ना, वो अल्सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लड बाहर निकल रहा था। इनको डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट करने वाले थे डॉक्टर इनको, लेकिन उसके पहले इन्होंने, डॉक्टर लोगों ने उनको हॉस्पिटल में जो थे उस हॉस्पिटल के आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। उस टाइम ईस्टर जैसा हमारे यहाँ दिवाली होती है, वहां ईस्टर होता था, ईस्टर के वीकेंड चल रहे थे। मैं हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में भर्ती थी, इसलिए कई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था, या मुझे भी लग रहा था, अब मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ, ऊपर ही जाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मरने की कगार पे थी, और मुझे भी लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, और मेरे जो रिश्तेदार थे उनको भी लग रहा था मैं बचूंगी नहीं, इसलिए लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरा हीमोग्लोबिन यानी उनका, उस लेडीज का हीमोग्लोबिन कंटिन्यूअसली कम हो रहा था। उसके बाद एक दिन सर्जन मेरे पास आए, मैं आईसीयू में एडमिट थी, सर्जन मेरे पास आए और बोले अगर आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तो मैं ऑपरेट करूंगा। उन्होंने एक जाइंट अल्सर है, बहुत बड़ा अल्सर, तो स्वरूप हम अल्सर का छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो शरीर के अंदर कोई दूसरी चीज हो जाए, पैदा हो जाए तो तकलीफ होती है ना। तो उन्होंने बहुत बड़ा अल्सर देखा था, और ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही थी करके डॉक्टर उसको ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर बोले अगर आपका ब्लीडिंग नहीं रुका तो मैं आपको ऑपरेट करूंगा, ठीक है। अब ये अल्सर होने का कारण मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि मैं 3 महीने से खाली पेट बेबी एस्प्रिन एक टैबलेट आ रही थी, वो ले रही थी। मुझे नहीं मालूम था इसको खाली पेट नहीं लेते। आप देखना बहुत से डॉक्टर आपको बोलते कि एस्प्रिन सामान कोई भी गोली हम डायरेक्ट केमिस्ट से लेके आते हैं और खाली पेट भी ले लेते। तो डॉक्टर सजेस्ट करते कुछ चीजें खाली पेट होती है, कुछ चीजें बिना खाने के बाद लेनी पड़ती, कुछ दवाई है। तो ये एस्प्रिन, एक बेबी एस्प्रिन आती थी, ये खाली पेट लेती थी, और दिसंबर 2018 से ये बेबी एस्प्रिन ले रही थी। और अप्रैल 2019 में, है ना, अप्रैल 2019 में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि इनको ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही थी, और उसके बाद इनकी तबीयत तेजी से खराब हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए इनको एडमिट करना पड़ा। उसके बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद इनके तबीयत में सुधार होना चालू हुआ, ऑपरेट नहीं हुआ था अभी, और इनका सुधार होना चालू हो गया था, हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा था, और डॉक्टर ने इनको 27 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से। 27 अप्रैल को इनको डिस्चार्ज कर दिया। इन्होंने हीमोग्लोबिन चेक करवाया तो 100 के ऊपर इनका हीमोग्लोबिन चले गया था, 100 है 10 अपने हिसाब से 10 प्लस इनका हीमोग्लोबिन हो गया था, और मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने घर आने के बाद फिर से हीमोहिम और जो भी रूटीन थे ऑलरेडी अदर जो चल रही थी वो सब मैंने चालू किया, और जुलाई में मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया 2 महीने बाद। अब जुलाई में मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें देखा मेरा अल्सर हील हो गया था। जो अल्सर मेरा खराब हो गया था, जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी, वो हील हो गया था। मुझे लगता है
ये मेरे साथ प्रोबायोटिक के कारण हुआ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक प्लस हिमोहिम के कारण ये हुआ है। तो ठीक है, मुझे लगता है प्रोबायोटिक के कारण। और एक बात बताती हूँ, जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तब डॉक्टर ने मेरी सभी प्रकार की दवाइयाँ, जो भी टैबलेट थी वो बंद कर देती, सिर्फ मेरी जो डायबिटीज की जो दवाई चालू थी उसको ही छोड़कर बाकी सब दवाइयां बंद कर दी। सिर्फ डायबिटीज की दवा मैं रोज लेती थी। और 1 साल तक मैंने हाई बीपी, मेरे को हाई बीपी था, तो हाई बीपी की दवा टैबलेट नहीं ली थी। जब मैं हॉस्पिटल थी तब से लेके उसके डिस्चार्ज होने के बाद, है ना, जब हॉस्पिटलाइज हुई थी उसके बाद भी, डिस्चार्ज होने के बाद भी मैंने टैबलेट नहीं ली थी, और लगभग 1 साल मैंने टैबलेट नहीं ली थी। मुझे लगता है ये हीमोहिम के कारण हुआ। हीमोहिम के कारण मेरा बीपी, जो हाई बीपी था, वो नॉर्मल हो गया। मैं 2020 में 2020 में डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा बीपी चेक करने के बाद आपको अभी बीपी के लिए कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने लगभग, ये लेडी क्या बोलती है, मैंने लगभग 10 साल, अप्रॉक्स 10 ईयर बीपी के लिए दवा ले रही थी, और पिछले 1 साल से मैं कोई भी दवा बीपी के लिए नहीं ले रही हूँ। उसके बाद भी मुझे बीपी का तकलीफ नहीं है, बीपी की शिकायत नहीं है, और डॉक्टर ने बोला अब आपको बीपी नॉर्मल है, आपको बीपी लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी लोग बीपी के लिए दवाई लेते हैं, उनकी बीपी की दवाई आज तक कभी भी बंद नहीं हुई है, जिंदगी भर मरते दम तक चालू रहती है। साथ में फिर कभी खून पतला करने की दवा भी चालू हो जाती है। ठीक है, तो हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक भी आ सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है, आंखों का रेटिना भी खराब हो सकता है अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो। ठीक है, और एक बीपी जो पेशेंट होता है घर में बीपी के लिए, जैसे मेरे पापा भी, उनको भी बीपी की शिकायत थी, हाई बीपी की, तो अप्रॉक्स बीपी के लिए मैं उनकी जो महीने की दवाई लाता था, एक 500-600 रुपये, डॉक्टर, हर एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे अलग अलग होती है, किसी की 300 की होती है, किसी की 500 की होती है, किसी की 600 रुपये की होती है, महीने के लगते थे, यानी 12 महीने के लगभग 6,000 रुपये लगते थे। अगर कोई 10 साल भी लेता है तो 60,000 रुपये लगभग अप्रॉक्स उसने खर्चा किया हुआ है वो बीपी के दवाई में। ठीक है, अब सिर्फ बीपी से क्या होता है, बीपी पे चलो ठीक है 60,000 रुपए आपने लगभग 6,000 रुपए साल का खर्चा कर रहे हो, 10 साल में आपने 60,000 खर्चा कर दिए, कोई बात नहीं। लेकिन बीपी से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हार्ट अटैक आ गया तो 2 से 4 लाख रुपए का खर्चा वन टाइम, उसके बाद का अलग ये खर्चा हो सकता है। उसके बाद किडनी अगर आपकी फेल हो जाती है तो अगर ट्रांसप्लांट करनी पड़ी तो 7 से 10 लाख का खर्चा, और डायलिसिस करनी पड़ी तो 10 से 12,000 रुपए पर मंथ का खर्चा आ सकता है। ये भी बढ़ सकता है, अलग अलग हॉस्पिटल के ऊपर है। उसके बाद आई लॉस, किसी का आई में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका भी खर्चा आता है लगभग अप्रॉक्स 1 से 2 लाख रुपए। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी जिसको हम डायबिटीज हो गए, इस तरह के जो भी बीमारियां हो जाती है उसमें खर्चा आता है लगभग 3 से 5 लाख रुपए। और मेमोरी ट्रबल, बहुत से लोगों को मेमोरी का लॉस हो जाता है, मेमोरी ट्रबल हो जाता है, उसमें भी 50,000 से लेके 2 लाख का खर्चा आता है। और डिमेंशिया भी बीमारी हो सकती है, उसका भी खर्चा होता है 50,000 से 2 लाख। यानी अप्रोक्स अगर एक बीपी किसी को हो जाता है तो 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है आगे चल के। आएगा ही नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आ सकता है। सबसे पहले आपको प्रिवेंट करना है। अगर आपको हाई बीपी है तो ये जो बीमारी हो सकती है हाई बीपी होने के कारण, इनको आपको प्रिवेंट करना है। और इनको प्रिवेंट करने के लिए आपको हीमोहिम लेना चाहिए। और हीमोहिम लेने से क्या हो सकता है, जैसा इस लेडीज को बीपी से फ्री हो गई, इनको बाद में बीपी की दवाई लेनी नहीं पड़ी, हो सकता है आपके साथ भी हो, बीपी की दवाई आपको लेनी नहीं पड़े, क्योंकि आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये प्रोडक्ट कोई दवाई तो नहीं है, हीमोहिम एक इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी ठीक करता है। आपने टेस्टोमनी में देखा कि किस तरह से इम्यूनिटी ठीक होती है। तो ये इम्यूनिटी जब ठीक करता है तो इम्यूनिटी ठीक होने के कारण आपके शरीर के अंदर की जो बैक्टीरिया से लड़ने की पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और वो जो भी खराब बैक्टीरिया उनको मारते, इस कारण आप बीमारी से मुक्त हो सकते हो। ये आपकी इम्यूनिटी के कारण होता है, आपकी खुद की इम्यूनिटी के कारण होता है, और आप बीपी से भी छुटकारा पा सकते हो अगर आप हीमोहिम रेगुलर कंज्यूम करते हो। और बीपी के कारण होने वाली कई बड़ी बड़ी बीमारियां जो आदमी की जान ले सकती है, उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना है ये प्रोडक्ट तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर है 9325398926। ये आपके घर पे आएगा, कुरियर बाय कुरियर आएगा। आपको 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप खुद वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्काउंट प्राइस में भी आपको मिलेगा अगर आप खुद वेबसाइट पे जाके
ऑर्डर करोगे तो। लेकिन वेबसाइट पे कैसे ऑर्डर करना, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कीजिएगा और इसको अपनाइए। बहुत सारी टेस्टिमोनी है मेरे पास। आज मैंने बीपी की टेस्टिमोनी बताया आपको, इसी तरह बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो लोगों को रोग होते हैं उनके ऊपर टेस्टिमोनी है हीमोइम की। तो आज ही से अपनाइए हीमोइम और रहिए स्वस्थ जीवन अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।